Very, very warm welcome to everyone. This is a very special day. We all are here together. And as you all know, that yesterday was International Day of Yoga. And today we are celebrating. And here in Brahma Kumaris, we greet each other by saying Om Shanti. Om means I am, and Shanti means peace. So this is a beautiful mantra that reminds us that we all are peaceful souls. So maybe for a few moments, let's together stabilize ourselves in this awareness that I am a peaceful soul. Let's together say Om Shanti. Om Shanti. 3 times. Om Shanti. Just feel the peace as you are saying this. Om Shanti. Thank you, everyone. As you all know, this word yoga has become really very popular in today's world. And many of you must be knowing the meaning of this word yoga. Yoga means connection, originates from the Sanskrit word yuj, that means connection. So as we said, Om Shanti, what did we do just now? We connected ourselves to that space within us that is filled with peace. And how many of you really felt that energy of peace within? You feel that? Yes. Yes. So if we are in this awareness, Om Shanti awareness all the time, then our life will become very peaceful, right? And so today we will be talking many things about yoga. Yoga is not just usually what people think that it is something related to putting the body in a particular position, exercise, right? So that is just one form of yoga. In today's session, we will be doing that also. You all will be experiencing the physical form of exercise, the physical form of yoga also. We just did the chanting type of yoga. And after that, you will be getting this opportunity to do a little bit of physical yoga. And then also you will get the understanding of the Raja Yoga that Brahma Kumaris teach. So today is a very special day because we have very special guests who are visiting from India. And as you all know that India is considered to be the land of yogis, right? Yoga has originated from India, from Bharat. So we have two flying yogis. They have flown from India, and we are so fortunate that they have come here on this special occasion, right? So whatever we think, that's where we connect ourselves to, right? So we will be talking more about the connection in this session. Brother and sister both will be telling us, they will be awakening us more about this connection. I would like to invite now a very special senior yogi from the headquarter of the Brahma Kumaris, that is Mount Abu. He has come all the way from Mount Abu. Brother, please come. So we are not able to go to Mount Abu, so God has sent him, the flying yogi, to all of us. So let's welcome brother. And so brother has been in this Raj Yoga meditation for the past more than 40 years now. So he came into contact with Brahma Kumaris in 1981, and he surrendered his life completely to this service in 1991. So we are really very blessed to have him with us. Welcome, brother, welcome. And he is so gentle, so sweet. We just came to know him just a few hours ago, but we don't feel like that we have not met him before. We feel as if he is our true brother. ओम शांति ओम थोड़ा स्माइल के साथ बोलिए ओम शांति ओम शांति उमंग उत्साह
उमंग उत्साह के साथ बोलिए ओम शांति। Say with zeal and enthusiasm, Om Shanti. Children, especially, ओम say Om शांति। Shanti with a smile and with enthusiasm. आज का दिन वैसे तो कल 21 जून 2024 अंतरराष्ट्रीय योगा दिन मनाया, लेकिन आज हम लोग ये डे मना रहे हैं। और अभी अभी हमारे आदरणीय मधुबेन जी ने बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ। अच्छा लगा? अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? हाथ ऊंचा करें। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दीजिए। क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। शरीर की एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हिंदी समझते हैं ना आप लोग? तो फिजिकल योगा ऑल्सो वेरी नेसेसरी। कई प्रकार के योग इस दुनिया में सिखाए जाते। अभी सबका ध्यान गया कि योग हमारे जीवन का पार्ट होना चाहिए। योग से हम लोगों को बहुत सारा फायदा होता है। जैसे शरीर का योग करते हैं, उससे हमारा शरीर ठीक रहेगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के योग हैं। कई हठ योग भी करते हैं, कई लोग कर्म योग करते हैं, कई लोग भक्ति योग करते हैं, भक्ति करते हैं, डिवोशन। कई ज्ञान योग, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज, दैट इज ऑल्सो ज्ञान योग। बट इन दिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम लोगों को कौन सा योग सिखाता है? राजयोग। राजयोग अर्थात राजा बनने या बनाने वाला योग। राजा मीन्स किंग, रूलर। दूसरों के ऊपर राजाई करने की बात नहीं, लेकिन खुद के ऊपर हम रूल कैसे कर सकते, हम अपने जीवन के मालिक कैसे, राजा। क्योंकि ये जो शरीर की कर्मेंद्रिया है, उस पर हमारा कंट्रोल कितना है? आंख, मुख, कान, हाथ, पांव, क्या हमारे कंट्रोल में चलता है? जो चाहे वो देखे, जो नहीं चाहे वो ना देखे, जो चाहे वो सुने, नहीं चाहे वो ना सुने, जो चाहे वो बोले, नहीं चाहे वो। लेकिन आजकल क्या होता है, जो नहीं चाहे वो भी आंख देख लेती, नहीं सुनना चाहे वो भी कान सुन लेता है, और नहीं बोलना चाहे वो भी मुख से कभी कभी निकल जाता है। ऐसा होता है। जो कर्म नहीं करना चाहिए वो भी व्यक्ति से हो जाता है। आज कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि मेरे मुख से निकल गया है। ऐसे होता है कभी? वे बोलना नहीं चाहते लेकिन बोलते, बुरा करना नहीं चाहते लेकिन बुरा सुनना नहीं चाहते लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हम अपने कर्मेंद्रियों पर रूल नहीं कर रहे, लेकिन ये कर्मेंद्रिया हमें चला रही। ये कर्मेंद्रिया है, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हमें चला रही है। जबकि इस शरीर का मालिक कौन है? हम है ना। हम कहते हैं भाई ये मेरा शरीर है, तो मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। मेरी आंख, मेरा मुख, मेरा कान, मेरा हाथ, तो वो बोलने वाला कौन है? मैं। तो मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। तो अगर हम अपने ऊपर राज्य करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू बिकम किंग और रूलर over our physical sense, then we should have first this knowledge, spiritual knowledge, कि मैं कौन, who am I? मैं कौन, कहां से इस संसार में आया, कहां मुझे ये शरीर छोड़ के वापस जाना है, और मेरी क्या असली गुण है, क्वालिटी, रियल क्वालिटी मेरी क्या है। क्योंकि आजकल हम लोग ये फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण हम अपनी असलियत को भूल गए। हम जो रियल में हैं वो भूल गए। लोगों को मालूम ही नहीं कि मैं कहां से आया। आप किसी को भी पूछेंगे कि भाई जी आपका परिचय दो, आप कौन है, तो वो क्या बोलेगा? वो शरीर का नाम बताएगा, मेरा नाम ये है, जबकि वो तो शरीर का है। या तो फिर वो अपना पोस्ट पोजीशन बताएगा। कोई कहेगा मैं इंजीनियर, कोई कहेगा मैं डॉक्टर, कोई कहेगा एडवोकेट। तो नाम, रूप, पोस्ट, पोजीशन, ये सब किसके ऊपर है? शरीर, है ना? जब हमारा जन्म हुआ तब न हम डॉक्टर थे, न इंजीनियर थे, न एडवोकेट थे। भाई हम बड़े हुए, पढ़ाई किया, स्टडी किया, उसके बाद हमने डिग्री प्राप्त किया, उसके बाद हमें पोस्ट मिली। लेकिन वो पोस्ट का जो नशा है वो व्यक्ति को चढ़ जाता है। इसको कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस। मैं कौन, है ना? मैं कौन, इस शब्द का, इस क्वेश्चन का अगर हमने जवाब ले लिया कि मैं कौन, तो सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। और ये जो राज योग है, योग का भी फाउंडेशन ये स्पिरिचुअल नॉलेज। जब तक हमारे पास ये सत्य ज्ञान नहीं है तब तक हम योग नहीं लगा सकते, न हम अपने ऊपर राजाई प्राप्त। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे पहले ये बताया जाता है कि आप कौन है, कहां से आए, क्या आपके असली गुण है। ये तो लोगों को कुछ मालूम नहीं। हिंदी में कहते हैं निकले कहां से मालूम नहीं, जाना कहां मालूम नहीं, दिन रात भटकते कदमों को मंजिल का निशाना। व्यक्ति बस भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे,
कोई वेल्थ के पीछे, पोस्ट के पीछे बस भाग रहा है। खुद के अंदर का ज्ञान नहीं है, लेकिन बाहर भागता है, दौड़ता रहता है। और जितना बाहर भागता है, जितना दौड़ता है, उतना ही व्यक्ति थकता है। क्या होता है, जो शांति से अपने जीवन को जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए, प्यार से जीना चाहिए, वो जैसे धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन से दूर होता जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, जैसे बड़ा घर होगा, बड़ी अच्छी गाड़ी होती है, आजकल ऑडी गाड़ी, मर्सिडीज, पता नहीं क्या क्या अच्छी अच्छी गाड़ियां वो भी होती है। घर है, गाड़ी है, लाड़ी है, वाड़ी है, फार्म भी होता है बड़े बड़े। लेकिन क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, मन की, क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहा है। व्यक्ति आजकल बाहर ढूंढता है कि यहाँ सुख है, यहाँ शांति है, ये साधन में ले लूं तो मुझे सुख मिलेगा, इतना बड़ा घर हो तो मैं सुख। घर ठीक है, होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन वो कंफर्ट देती है, थोड़े समय के लिए आपको आराम जरूर मिलता है, लेकिन जो परमानेंट हमारी मन की शांति है, वो इस चीजों से नहीं मिलती। आज अगर कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीद करके लाएगा, लेकिन दूसरे दिन सवेरे अगर वो देखे कि किसी ने उसको थोड़ा पत्थर मार दिया है, तो सवेरे ही उसकी मन की शांति भंग हो जाएगी। वो 50 लाख, $50,000, $50 लाख, पता नहीं कितने की गाड़ी लेके आया, और ये क्या हो गया, तो मसा मन क्या हो जाएगा। तो मन की शांति का आधार बाहर नहीं है, लेकिन मन की शांति का आधार अंदर, इनसाइड। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है, उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। आकाश, पानी, अग्नि, वायु, धरती का बना हुआ पुतला है। इस मिट्टी से ही पैदा हुआ है और इस मिट्टी में ही मिल जाना है। पैदा भी यहां से हुआ, मिलना भी यही है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है, वो है आत्मा, जिसको हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, लाइट कहते हैं। जो यहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, खासकर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, तो ये निशानी किस चीज की है कि मैं एक आत्मा बिंदी, टाइनी सोल, एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट। ये आत्मा इस भ्रुकुटी, फोरहेड में रहकर, 2 आंखों के बीच रहकर पूरे शरीर का संचालन करती है। और यही आत्मा का जो ओरिजिनल वैल्यूज है, क्वालिटी है, वो है पीस, लव, प्यूरिटी, नॉलेज, पावर, ट्रुथ। आत्मा शांत स्वरूप, ओरिजिनल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो ये ज्ञान हमारे जीवन में पहले होना चाहिए।
और इस चीज का जितना हम लोग अभ्यास करते हैं, योग का अर्थ क्या है, राज योग जिसको हम कहते हैं ना, योग का अर्थ क्या है। जैसे एक योग शब्द है और दूसरा है वियोग। वियोग अर्थात अलग हो, सेपरेट हो, और योग अर्थात मिलन। जब दो चीज का मिलन होता है उसको हम लोग योग। तो जब हम अपने साथ ही पहले तो मिले, दूसरों के साथ मिलते हैं, लेकिन अपने साथ ही बात करने का हमारे पास समय नहीं। तो सबसे पहले हमें ये भी सीखना होगा कि खुद खुद के साथ हम बात करें। रोज अपने आप को पूछे, क्वेश्चन पूछे रोज उठ करके कि मैं कौन, कहां से आया, कहां जाना, मेरे असली गुण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं इस संसार में आया तो सही, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है। क्या केवल फैमिली को पालना, धन कमाना, समाज में रहना, इतना ही मेरा कर्तव्य है या और कुछ है। तो जब हम खुद के साथ इस प्रकार की बात करते हैं, स्वयं को स्वयं के साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं, तभी हमें याद आता है कि मैं ये फिजिकल बॉडी नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं। आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम ब्लिसफुल सोल। तो ये प्रैक्टिस हम लोग यहाँ सुबह से करते हैं। जब हम सवेरे उठते हैं, हमारे यहाँ सुबह अमृत वेला का समय कहा जाता है। वो है 4 से 5 बजे का समय। तो हमारा उठने का जो टाइमिंग है वो है 3:30 3:45 AM। और उसके बाद हम लोग थोड़ा योग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और इस मेडिटेशन के अंदर हम लोग स्वयं के बारे में अच्छे अच्छे संकल्प, खुद के बारे में कि मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा प्रेम, मैं आत्मा आनंद से। तो जब हम सुबह सुबह अच्छे संकल्प करते हैं, हमारे जो विचार है, अच्छे विचार का क्रिएशन हम खुद करते हैं। सुबह उठ के पहले ही हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पहले ही टीवी नहीं खोल के देख लेते कि भाई आज कौन सा समाचार। क्योंकि दुनिया का समाचार तो आप और हम सभी जानते हैं, नेगेटिव। यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ। न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि आज इधर ये हुआ, आज यहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ ये प्राकृतिक आपदा है, यहाँ इतने लोगों ने शरीर छोड़ा, बना मौत का समाचार है, कुछ ऐसे नेगेटिव। तो सुबह ही अगर उठ करके हम नेगेटिव फीडिंग देंगे अपने मन को, तो ये मन में नेगेटिविटी बढ़ती, वेस्टेज बढ़ता है। इसलिए सवेरे सवेरे यहाँ हम लोग अच्छे संकल्पों का निर्माण करते हैं अपने आप, अपने कल्याण के लिए। ये दूसरों के कल्याण की बात नहीं है, लेकिन खुद के कल्याण के लिए ही हमें अच्छे संकल्प करना चाहिए। वैसे भी भक्ति मार्ग में आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे,
लोग सुबह उठते हैं जल्दी, जो भगत लोग होते हैं 5 बजे उठते, कुछ मालाएं भी फेरते हैं, कुछ मंदिर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन उनके अपने घर में भी रहे, अपना मन भी शांत हो, इसलिए लोग भक्ति। भक्ति के पीछे राज है, ऐसे ही भक्ति नहीं करते। ऐसे ही यहाँ हम लोग जो ज्ञान और योग की शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है, वो हमारे मन को शांति देता है, हमारा मन शांत हो जाता है। पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं ना, वो असली असली चीज है ये। आउटसाइडर आप कुछ भी भले बढ़ा ले, लेकिन जब तक हम खुद अंदर से शांत नहीं होंगे, अंदर से खुश नहीं होंगे, अंदर से आनंद नहीं होगा, अंदर से चीयरफुल नहीं होगा, तो बाहरी चीजों से क्या फायदा है? बाहर से हम कितना भी धनवा, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, ऐसा हमारा चेहरा होना चाहिए जो सदा हर्षित, चीयरफुल। हमारे देवी देवताओं के जो पिक्चर हम देखते हैं या मंदिर में जाते हैं, उनके चेहरे पर भी क्या दिखता है? खुशी दिखती है। केवल दर्शन के लिए घंटों तक लोग लाइन में खड़े रहते हैं, और जब उसकी बारी आती है 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड या थोड़े समय के लिए ही खड़े होकर खाली दर्शन करके खुश हो जाते हैं, और फिर लोग उसको कहते बस हो गया आपका। 12 घंटा 24 घंटा इंडिया में तो हम देखते हैं तिरुपति मंदिर में घंटों लाइन लग, केवल 2 5 10 सेकंड। तो केवल हम उनको देख के खुश नहीं हो, लेकिन हमारा जीवन में खुशी, हमारे चेहरे पर खुशी हो, हमारा मन शांत हो, हम खुद एक ऐसा अपना लाइफ बनाए, जीवन बनाए, ये महत्व। तो ये लक्ष्य हम लोग लेके चलते हैं कि हमारा खुद का जीवन देव समान, देवी समान, हम खुद एक सेटिस्फेक्शन बना, संतुष्ट रहे। जब मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे किसी भी अच्छे व्यक्ति से जब आप मिलते, उस व्यक्ति से मिलते, तो आपके जीवन में भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन कोई रोता हुआ चेहरा वाला व्यक्ति आपको मिल जाए, तो आपको भी थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आएगी ना। इसलिए जीवन का ये लक्ष्य कि हम इस ये जो राजयोग मेडिटेशन योग है, न केवल अपने साथ, लेकिन अपने साथ साथ जो हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसको हम सुप्रीम सोल कहते हैं, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जैसे हम आत्मा शांत स्वरूप है, वो शांति का सागर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ माइंड, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। तो उसके साथ भी हमारा योग, गीता में कहते हैं ना, मन मना भव, क्या कहते हैं? एक आपने सुना होगा मंत्र, मन मना भव, अर्थात तेरा मन मुझ में लगा। लेकिन हमारा मन हमारा कहना मानता ही नहीं।
2 मिनट भी अगर हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहेंगे, लेकिन 2 मिनट के लिए भी हमारा मन एकाग्र नहीं, हमारे कंट्रोल में है ही, भागता है, इधर उधर भागता है। मन को कहते हैं चंचल घोड़ा है। ये मन क्या है? चंचल घोड़ा, उसको घोड़ा कहते हैं। मंकी जैसा भी है, मंकी उछल कूद करता है, ऐसे ये हमारा मन भी जो है ना, वो उछल कूद करता है, कभी इधर कभी उधर। एक जगह टिकता ही नहीं। अगर हम चाहे तो भी आपको कहे कि भाई 5 मिनट आप शांत होके बैठो, एक परमात्मा को याद करना, लेकिन आप देखेंगे 5 मिनट में वो कई जगह जाकर चक्कर लगा के आए, घर भी पहुंच जाएगा, बच्चों के पास भी पहुंच जाएगा, कई जगह। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ये योग हमें ये भी विधि सिखाता है कि न केवल स्थूल कर्मेंद्रिया, लेकिन ये जो आत्मा की 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, सटल है, सूक्ष्म, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, इम्प्रेशन। मन सोचने का काम करता है, आइडिया मन में अलग अलग आता रहता है, फील करने का काम भी, दुख का फीलिंग भी ये मन करता है, सुख का फीलिंग भी ये मन करता है। दूसरी फैकल्टी बुद्धि, जो डिसीजन लेने का काम करती है, ये काम करूं या ना करूं। तो मन फिर बुद्धि और दोनों से मिलकर के अगर हमने कोई कर्म किया, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, अच्छा कर्म का फल ये होता है कि वो धीरे धीरे हमारे संस्कार बनते हैं। एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, तो वो संस्कार बन जाते हैं, है ना? तो आत्मा के कुछ लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के संस्कार कैसे होते हैं? बुरे कर्म करने वालों के संस्कार बुरे, अच्छे कर्म करने वालों के संस्कार। तो हम लोग कई बार किसी को देख के कहते हैं ना कि भाई ये बहन तो जैसे देवी जैसी है, ये भाई तो जैसे देवता जैसे, कहते हैं। तो वो किस पर आधारित है? हमारे कर्मों पर आधारित है, हमारे गुणों पर आधारित। गुण है, गुणवान है, तो सबको पसंद आता है, सबकी दुआएं मिलती है ना, ये अच्छा है। अच्छे लोगों का संग हम लोग करते हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग करना चाहिए। सत्संग का नाम सुना है? सत्संग, अच्छे लोगों का संग। और जितना हमारा अच्छे लोगों का संग होगा ना, वो भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। बुरे लोगों के संग में अगर व्यक्ति जाता है, तो धीरे धीरे करके उनका जीवन भी बुरा बन जाता है। तो ये भी हमें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए कि मेरा संग किसके साथ, कौन सी आत्माओं के साथ मेरा संग। तो ये सब चीज हमारे मन पर प्रभाव डालती है, और ये मन के अंदर, आप नहीं मानेंगे, एक दिन के अंदर व्यक्ति 40 से 50 हजार विचार करता है। कितना विचार? 40 to 50,000 थॉट्स विद इन 24 आवर्स। उसमें भी हम अगर
अलग अलग करें तो 4 प्रकार के विचार हमारे मन में चलते मुख्यत्वे। एक है नेसेसरी थॉट, अर्थात आवश्यक विचार जिसको हम कहते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के विचार है। जैसे कोई माता है तो घर में भोजन भी बनाना, बच्चों को भी संभालना। कोई भाई है, पिता है, तो उसको बिजनेस भी करना, जॉब पर भी जाना, अर्निंग भी करना, ये उसकी जिम्मेवारी। तो जो हमारी जिम्मेवारी के विचार है उसको हम क्या कहेंगे? नेसेसरी थॉट, आवश्यक विचार। वो जरूरी है। अगर हम आवश्यक विचार नहीं करेंगे तो न हमारा घर चलेगा, न हमारा अर्निंग होगा, फिर तो हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। दूसरे प्रकार के जो विचार है वो है वेस्ट थॉट। वेस्ट अर्थात व्यर्थ विचार, जिससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होता। या तो व्यक्ति पास्ट की बातों को सोचता रहता है, जो हो गया ना उस बातों में ज्यादा रहेगा, जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो हो गया सो हो गया, वो तो वापस सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो पूरा हो गया। और कई बार व्यक्ति अभी कुछ फ्यूचर हुआ भी नहीं है, भविष्य आया भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भविष्य की बातों को सोचता है, उससे भी कोई फायदा नहीं। बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचने से मन में टेंशन आएगा। रहना कहाँ चाहिए? प्रेजेंट, वर्तमान में रह करके हमें, भाई हम अपने वर्तमान में रहकर अच्छे विचार करें, अच्छे कर्म करें, तो उसका फल ऑटोमेटिकली हमें फ्यूचर अच्छा होगा ही होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी से आपको फ्यूचर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा या तो पास्ट या फ्यूचर, वेस्ट, नथिंग, नो बेनिफिट। और तीसरे प्रकार के जो विचार है वो है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक, ईर्षा, द्वेष, घृणा, है ना। जैसे गीता में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इविल थॉट्स, जिसको नकारात्मक विचार। कोई भी सिचुएशन आती है तो व्यक्ति को मन में पहले ही नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव बाद में आता है लेकिन पहले ही नेगेटिव। जैसे एक ही छोटा अपना बच्चा स्कूल में गया हो, उसका टाइम हो गया हो घर आने का, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया, फिर सोचेंगे अरे क्या हुआ। पहले ही नेगेटिव सोचना शुरू करें, और वो नेगेटिव थॉट के कारण फिर टेंशन बढ़ना शुरू, फिर पसीना आना शुरू, फियर, एंजाइटी, कोई कारण होगा, चलो लेट। लेकिन व्यक्ति का ये एक नेचर बन गया है नेगेटिव का। तो नेगेटिव थॉट भी व्यक्ति को टेंशन दिलाते हैं। और चौथे प्रकार के जो विचार है वो है पॉजिटिव थॉट, अर्थात सकारात्मक चिंतन, श्रेष्ठ विचार, शुभ विचार, गुड विशेष के विचार, दूसरे के प्रति भी हमारे अच्छे विचार हो। तो अभी आप सबसे एक क्वेश्चन है कि व्यक्ति की ये जो फैक्टर ये है, माइंड की फैक्टर, इसमें इतने विचार आते हैं। आज की दुनिया का व्यक्ति सबसे ज्यादा कौन सा विचार करता होगा? बताइए। बेस्ट। माता जी कहती है बेस्ट। अच्छा, कितना परसेंट होगा? समझो 100% विचार हो, उसमें कितना परसेंट होगा बेस्ट? 40 to 50%। ओके, 50%, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और दूसरे प्रकार के विचार कौन से हो गए? बताओ भाई। 50% वेस्ट हो गया है, और 50%
कौन से? गुड थॉट? No. नो, यू आर रॉन्ग। अच्छा, दूसरे कौन से प्रकार के विचार होंगे, बताओ? नेगेटिव हो गया। कितने कितने परसेंट हो सकते? अंदाजित 65%. 65% नेगेटिव। फिर तो 100 से ऊपर हो गए ना, क्योंकि ये Okay. आपको 100 में अंदर लाना है। Okay. क्योंकि 50 अगर इसने फिर बोल दिया वेस्ट, तो आपको फिर उस Okay, अनुसार, then, क्योंकि अभी तो नेसेसरी भी बाकी है। 45. 45, देन 95 इज ओके, फिक्स हो गया भाई। वेस्ट एंड नेगेटिव 95%। ओके, फिर नेसेसरी भी तो कुछ होना चाहिए। अच्छा, नेसेसरी कितना होना चाहिए? 3%. 3%, 4%। अच्छा, फिर बच गया कितना? कितना बच गया? ओनली 1% पॉजिटिव। अब बताओ, ये फैक्ट्री की हालत क्या होगी? अगर कोई फैक्ट्री 99% वेस्टेज ही अगर प्रोडक्शन करती होगी, तो वो फैक्ट्री का रिजल्ट क्या होगा? कितना होगा, क्या होगा? देवे नहीं, देवेदार हो जाएगी ना। तो ये हमारी हालत हो गई है, वर्तमान समय की मनुष्य की हालत ये हो गई है कि नेगेटिव ज्यादा हो गया, वेस्ट ज्यादा हो गया। इसके कारण जो खुशी होनी चाहिए ना, तो ये जब हम राजयोग का या ज्ञान सुनने का अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारी जो नेगेटिविटी है ना, वो थोड़ी कम होती है। नकारात्मक विचार कम, क्योंकि सुबह से ही हम लोग पॉजिटिव थॉट करते हैं। सवेरा शुरू से ही हमारा अच्छा हो जाता है, और जैसा संकल्प हम बोएंगे, शरीर में भी अगर वेस्ट ज्यादा जाएगा तो शरीर को नुकसान करेगा ना। ये भी एक फूड है। तो थॉट्स वो भी हमारे एक माइंड के लिए क्या है? फूड है। हमारी मन की शक्ति को या तो बढ़ाएगा या मन की शक्ति को लूज करेगा। तो ज्यादा नेगेटिव, तो इसलिए देखो, मन की ताकत जो है ना, वो खत्म हो गई। कहते हैं भाई, पावर ऑफ माइंड होना चाहिए, लेकिन खत्म। व्यक्ति के मन में ताकत ही नहीं है। और उसका एग्जाम्पल ये है कि व्यक्ति को मालूम भी होता है कि भाई ये अच्छी चीज है, भाई ये अच्छा है, और ये भी मालूम होता है कि ये चीज बुरी है, माना हेल्थ के लिए भी बुरी है। जैसे भाई बीड़ी सिगरेट कोई पीता है, या शराब पीता है, या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स है व्यक्ति की चीज, उनको पता है कि भाई ये बुरी चीज है, इसको छोड़ना चाहिए, और ये अच्छी चीज, माना गुणों को धारण करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति अच्छा काम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, और बुरा काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एग्जांपल, ये 2.5 इंच की बीड़ी जिसको सिगरेट कहते हैं ना, कोई पीता है, और डॉक्टर भी उसको कहता है कि तुम ये सिगरेट पीना छोड़ दे, नहीं तो तेरे को कैंसर हो जाएगा। तो वो क्या जवाब देता है कि बीड़ी तो स्वर्ग की सीढ़ी है। बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी है, इसको नहीं छोड़ सकते। भले कैंसर हो जाए, मर जाओ, कोई आता है। माना 2.5 इंच की बीड़ी 5.5 फुट की व्यक्ति उसका गुलाम है। गुलामी है ना, वी आर स्लेवर। एक छोटी सी चीज का, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल दिया। ऐसे तो बहुत सारी बैड हैबिट्स व्यक्ति पाल के रखती है, छोड़ ही नहीं सकते। जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमेव। धर्म क्या है उसको पता था, लेकिन धारण नहीं कर सकता। अधर्म क्या है उसको मालूम था, लेकिन छोड़ नहीं सकता था। तो कभी कभी हम लोगों की हालत भी ऐसी हो जाती है
ये जो मनोबल जो है ना वो खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते, लाचार हो जाती है, लाचार जिसको हम कहते हैं है ना? मन की शक्ति गायब हो जाती है। जैसे गाड़ी में एक बैटरी होती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए गाड़ी की, तो गाड़ी को क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, धक्का गाड़ी। तो आजकल मनुष्य के जीवन की गाड़ी भी कैसी हो गई, किसी को भी पूछो भाई कैसे है, बहन कैसे है, कहते बस दिन काट रहे, मना खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, फिर जीवन का फायदा है क्या। आप जीवन भगवान ने दिया और आपके जीवन में खुशी ही ना हो, तो ये आत्मा रूपी जो बैटरी है ना वो डिस्चार्ज हो गई। क्या हो गया, अब उसको चार्ज कैसे करेंगे। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल की बैटरी भी हम दिन में कम से कम एक दो बार चार्ज करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा, और मोबाइल के बगैर तो आजकल चलता ही नहीं, चलता है। मन पर, माइंड पर इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मोबाइल पर बहुत ध्यान है। हर 5 मिनट के अंदर व्यक्ति अपना मोबाइल चेक करता है, कोई मैसेज आया नहीं आया, है ना, देखेगा। अरे अगर नहीं आएगा तो नेटवर्क चेक करेगा कि ठीक से नेटवर्क चल तो रहा है, क्यों मैसेज कोई भेज नहीं रहा है, क्या चक्कर क्या है, मेरा मोबाइल कुछ खराब तो नहीं हो गया। तो ये है माइंड और वो है मोबाइल। तो माइंड पर ध्यान देना चाहिए कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, या माइंड के बदले माइंड पर ध्यान जाता है। MIND कहते हैं, लेकिन डी के बदले ई लगाओ तो माइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, मेरा क्या है। आज व्यक्ति मेरे के लिए पीछे पड़ता है कि भाई मेरा ये हो, मेरा वो हो, मेरा हो। वैसे तो कहता है हे भगवान सब कुछ तेरा, क्या लागे। जब मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान को, हे भगवान ये सब कुछ तेरा, क्या लागे। लेकिन घर आकर के क्या करता है, ये मेरा, ये मेरा। तो माइंड हो गया ना, मैं और माइंड। तो माइंड पर हमें ध्यान देना है, तो माइंड पर अगर हमें ध्यान देना है तो नेगेटिव को धीरे धीरे कम करना, वेस्ट को हमें क्लीन करना हो। जैसे अपने घर में भी कचरा बढ़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं। आपके गार्डन में भी आप 2 4 दिन 8 दिन ध्यान न दो तो वहां भी क्या होता है, ऑटोमेटिक कचरा आता है, आप वहां डालने नहीं जाते लेकिन आता है। ऐसे ही हम लोग इस संसार में रहते हैं ना, तो यहाँ वेस्ट के कचरे कुछ न कुछ आते ही रहते हैं, कोई सुनाएगा, हम कुछ देखेंगे, हम कुछ पढ़ेंगे, ये सब कचरा इकट्ठा यहाँ होता है। क्योंकि हम जो देखते हैं ना उसका प्रभाव जो सुनते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो बोलते हैं उसका भी प्रभाव। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने मन में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा, नेगेटिव और वेस्ट को खत्म करें। नेसेसरी जरूर करें, जो जरूरी है वो तो हमें करना ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? हमारा पार्ट है। कहते हैं भाई वी आर ऑल एक्टर्स, दिस वर्ल्ड इज ए यूज ड्रामा। तो हमारा पार्ट है, तो पार्ट तो हमें अच्छे से बजाना है। ऐसे नहीं मैं फादर हूं और बच्चों का ध्यान ही ना रखूं, मैं मदर हूं बच्चों का ध्यान ही ना रखूं, नहीं। दैट इज आवर पार्ट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो अच्छे से अच्छा पाठ बजाना है, लेकिन पाठ बजाते बजाते इतने मगन ना हो जाए, रोल कॉन्शियस ना हो जाए कि मैं कौन हूं, भला मैं कौन हूं। एक हंसी की कहानी सुनाता हूँ। हमारे इंडिया में, भारत में
एक महाराणा प्रताप करके बड़ा राजा, तो उसका नाटक चल रहा था। नाटक बनाते हैं पहले, बता ज्यादा बनाते, अभी तो सिनेमा आ गया है। तो महाराणा प्रताप का नाटक चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति को पार्ट मिला महाराणा प्रताप। कौन सा पार्ट मिला? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का ड्रेस, उसके हाथ में भाला, उसका ताज, सब। तो जो पार्ट बजा रहा था उनको नशा चढ़ गया। क्या नशा चढ़ा? मैं कौन? महाराणा। नाटक पूरा भी हो गया। ऑर्गेनाइजर ने बोला कि भाई नाटक पूरा हो गया है, अभी ड्रेस व्रेस उतार, घर जाना है। कहते नहीं, मैं कौन? बाहर निकला, बस पे बैठा, टिकट कंडक्टर, टिकट टिकट। कहते कौन सी टिकट? मैं मारा। टिकट कंडक्टर भी घबरा गए। थोड़ी देर बाद उसने टकोरी बजाई और कहा, महाराणा प्रताप जी, आपका चित्तौड़गढ़ आ गया। तो बैग से नीचे, कहते मेरा गांव आ गया चित्तौड़गढ़। चल। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी ये एक्टिंग करते हैं, मदर का पार्ट, बेटे का पार्ट, डॉक्टर का पार्ट, इंजीनियर का पार्ट, लेकिन हम ये रोल कॉन्शियस ना हो जाए। ये हमारा रोल है कि भाई हमें ये रोल मिला है कि भाई कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसके हाथ में पिस्तौल भी होती है नेचुरली। पुलिस स्टेशन में तो वो पुलिस का पार्ट बजाए, ठीक है, लेकिन घर आके भी अगर वाइफ के सामने, बच्चों के सामने भी वही पार्ट प्ले करे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर, तो वाइफ का और बच्चों का हाल क्या होगा? तो पार्ट है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, माइंड में, कि वी आर ऑल एक्टर्स, वी हैव टू डू अवर एक्शन वेरी गुड। अच्छा पार्ट बजाना है। और अगर हम योग सीखते हैं ना, तो हमारे कर्म में भी कुशलता। गीता में कहा ना, योगा कर्मेषु कौशलम। अगर हम योग सीखते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता है, एलिवेटिंग, अच्छे कर्म, सुखदायी कर्म, दूसरों को भी सुख देने वाले, शांति देने वाले कर्म। तो इस प्रकार से अगर हम ये योग के लिए थोड़ा, हमें अपने जीवन के अंदर भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को सब कुछ करने के लिए टाइम है। अपनी फैमिली को संभालने, धंधा, जो वर्क करने टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम। उनको बोलो तुम आधा घंटा थोड़ा मेडिटेशन करो, कहते नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं। तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। हम ही हमारे मित्र है अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, हम ही हमारे शत्रु है अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते। तो हम अपना क्यों शत्रु बने? थोड़ा अपने लिए टाइम, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए, अपनी मन की शांति के लिए। स्थूल चीजों से ये सब नहीं आएगा। आउटसाइड आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, ये अंदर जाने से, इनसाइड, हम जितना अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये गुण है वो अंदर है, बाहर नहीं। तो ये अंदर जाने की मेथड है, योग माना अंदर जाने का मेथड। योगी होता है ना, वो अंदर जाता है। एक बार क्या हुआ कि दो लोग बैठे थे, तूफान आया, बहुत जोरदार तूफान, ऐसा तूफान जैसे उड़ा के लेके जाएगा।
तो एक व्यक्ति तो इधर उधर भागने लगा अपने को बचाने के लिए, दूसरा व्यक्ति शांत होके अंदर चला गया। फिर पूछा कि तूफान चला गया, उसके बाद उसको पूछा कि अरे इतना तूफान आया, आप तो एक शांत होके बैठ गए, क्या हो? कहते जो होना होता वो तो होगा ही होगा। आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा, बस फर्क इतना ही है। आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। तो अगर हम शांति से, भाई घटनाएं आएगी, सिचुएशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, आने कैसी भी सिचुएशन आवे, लेकिन अगर हमारा मन शक्तिशाली है ना, मजबूत है, पॉजिटिव है, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो किसी भी घटना से हम हलचल में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हमारी जो ताकत है वो मन की शक्ति है। वो यही मन की शक्ति हमें एकदम स्टेबल रखेगी। माइंड स्टेबल होगा, वो थोड़ी सी बातों में हलचल में नहीं आएगा। नहीं तो कई व्यक्ति थोड़ी सी बात में ही हलचल में आना शुरू, रोना शुरू कर, हाय ये हो गया, हाय क्या है। थोड़ा अपने आप को पावरफुल करें। घटनाएं बाहर है, लेकिन हम तो अपने आप को मास्टर बनाए। जब हम अपने आप को मास्टर बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तो बाहर की किसी भी घटना आवे, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मना हलचल से दूर रह सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये योग से जो हमारे जीवन में कुछ फायदा हुआ, अनुभव, तो वो एक शेयर करने का, उससे भी हमें खुशी होती है। आज दूसरों को कुछ अच्छी बात सुनाए, वो भी तो एक सेवा है। तो हम सेवा भाव से ये काम करते हैं। ये हम लोग कोई लेक्चर के हिसाब से नहीं करते कि भाई ये हमें यहाँ भाषण करना है, नहीं भाई, हमारा ही परिवार, हम सब एक पिता के बच्चे हैं, है ना? एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो एक परिवार में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। Thank you so much, brother. It was such an enlightening experience for all of us. ओम शांति। आज पूरे विश्व में मेडिटेशन की आवश्यकता है। क्यों? क्यों है? फिजिकल भी जरूरी है और मेडिटेशन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर की इनर पावर नहीं है, खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई, शक्तियां खत्म हो गई। कहते हैं भगवान ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि को रचा था और हम आत्माओं को इस संसार में भेजा था, तो अपने सारे गुण और सारी शक्तियां भर के हमको भेजा था। लेकिन संसार में रहते रहते शक्ति और गुणों को यूज करते करते क्या हो गया? आज खाली हो गए, बेघर बन गए। न गुण रहा न शक्ति रही, और आज आवश्यकता पड़ी है मेडिटेशन की। आज दुनिया में मैं कहूंगी 4 प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परिस्थितियां है, बीमारी है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आर्थिक समस्या है, अनेक प्रकार की समस्या है, और वर्तमान जीवन उसका अंधकार में डूबा हुआ है और भविष्य के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और ही नेगेटिव सोच है, दूसरों को दोष दे रहे हैं, कोई मुझे साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरा नहीं है, टेंशन में रहता है, फिर व्यसनी भी बन जाता है, व्यसनों का सहारा लेता है दुखों को भूलने के लिए, और गलत काम भी कर लेता है, न खाने जैसा खा लेता है, न पीने जैसा पी लेता है, न देखने जैसा देख लेता है, न सुनने जैसा सुन लेता है, न जाने की जगह चला जाता है, और न करने जैसा कर्म भी कर लेता है, और न सोचने जैसा सोच लेता है। तो वर्तमान तो उसका
अंधकार में है, लेकिन भविष्य भी उसका अंधकार में ही डूबने वाला है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनके जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, सब कुछ है, लेकिन उनकी अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत है और वो सोचता है मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, वो मेरे अगले जन्मों के कर्म का परिणाम है, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, प्रोग्राम। लेकिन वर्तमान मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है और सबको सुख देना है, सबको मदद करना है, सबको साथ देना है, सहयोग देना है। और भगवान को भी इस जीवन में इतना याद करता है कि उनके पूर्व कार्मिक अकाउंट वो समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है और उसका भविष्य फिर कैसा जाएगा? अच्छा, रोशनी में जाएगा। जीवन अंधकार में है, दुख में है, तकलीफ में जी रहे, लेकिन भविष्य उसका रोशनी में ही जाएगा। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिसके जीवन में सब सुख है, सभी प्रकार का सुख है, सभी प्रकार का सुख है, लेकिन जी रहे हैं ईगो के साथ। मैं कुछ हूँ, सब मेरा है, और कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छा लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी को सुख नहीं दे रहे हैं। आई एम समथिंग समझ के चल रहे हैं, दूसरे लोगों को तुच्छ ही समझते हैं, किसी को सुख नहीं देते हैं, साथ नहीं देते, तो वो दुआ नहीं कमाते, आशीर्वाद नहीं कमाते, पुण्य नहीं कमाते हैं, तो उनका जीवन अंधकार में ही जाएगा। वर्तमान भले सुखी है, लेकिन भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। चौथे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब उसके पास है और उसकी अंतर प्रज्ञा चक्षु जागृत है और सोचता है कि मेरे पास जो है भगवान का दिया हुआ है, मुझे उसका सही उपयोग करना है, मुझे अपने तन से भी सेवा करनी है, लोगों की वाणी से भी सेवा करनी है, मन वचन कर्म से सबको सुख देता जाता है, अच्छा कर्म करता जाता है, सबको साथ सहयोग देता जाता है, पुण्य कमाता है, दुआ कमाता है, आशीर्वाद कमाता है, भगवान को भी शुक्रिया करता है, भगवान को भी तहे दिल से याद करता है, तो उनका भविष्य वर्तमान रोशनी में है, भविष्य भी रोशनी में जाने वाला है। तो जरा सोचो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताया 4 प्रकार के लोग हैं, उसमें हम किस लाइन में हैं, वो आप अपना सोचना, एकांत में बैठकर ये बात का विचार सागर मंथन करना और फोर्थ में आ जाना। ठीक है? हो सकता है, हो सकता है, सभी से हो सकता है। इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ हमारी सोच सही हो, हम सही सोचे और कम सोचे, जरूरी है उतना ही सोचे। भाई सी ने बताया ना 4 प्रकार के विचार आते हैं, तो यहाँ का स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी संस्था का, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और हाँ? सच बोलो, सच बोलो। तो हम कोशिश करें अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की। 3 बात जीवन में याद रखें, कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? नहीं होती है। तो हम कोशिश करें, पूरी कोशिश करें अच्छा बनने की। दूसरा, सच्चाई जीवन में धारण करें, सच्चाई के मार्ग पर चले। तीसरी बात, भरोसा रखे, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर भरोसा रखें, हमारी जिंदगी श्रेष्ठ बन जाएगी, हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। हम सदा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे, सबके लिए भी हम पॉजिटिव रहे, खुद के लिए भी पॉजिटिव, तो दूसरों के लिए भी पॉजिटिव। एक बार क्या हुआ, हमारे सेंटर में महिलाओं का प्रोग्राम रखा था और महिलाओं के प्रोग्राम में सबको पक्का कराया गया कि सबके लिए आप महिमा करो, सबकी महिमा करो, अच्छा बोलो। और यह पाठ पक्का कराया गया कि घर में जाकर अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा ये बोलना
कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, प्यारे हो, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे करके महिमा करना। तो एक बहन थी, उनका पति के साथ कभी बनता ही नहीं था। तो क्या हुआ, घर में गई, कभी बोलती भी नहीं थी इतना, तो घर में जाके पॉजिटिव पति के सामने बोला कि आप तो बहुत अच्छे हो, इतने सालों से हमारे को संभाल रहे हो, बच्चे को भी संभाल रहे हो, इतना कमा रहे हो, कमाने के लिए कितने मेहनत करते हो। तो पति तो ऐसे ही, अरे वाह। फिर पूछा आप कहाँ गई थी, तो कहा कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में गई थी। तो वो पति दूसरे दिन आया आया और बोला, अरे आपने तो मेरी वाइफ को क्या सिखा दिया, उन्होंने कभी मेरी महिमा नहीं की, लेकिन उन्होंने कल मेरे को रात को अच्छी बातें बोली तो मैं बड़ा खुश हो गया, कुछ तो यहाँ है। तो वो भी 7 डे कोर्स करने लगा, दोनों युगल ज्ञान में चलने लगे। तो कहने का भाव क्या है? जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और आपस में एक दूसरे के साथ जरा मीठा मुस्कुराइए, एक दूसरे के साथ मीठा मुस्कुराइए, देखो एक दूसरे को देखो। और हाथ मिलाइए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए और बोलिए, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। और ब्लेसिंग दीजिए, एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप जीवन में सदा खुश रहो, एक दूसरे को दो दो करो करो। बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। तो ये बात सदा याद रखेंगे, ठीक है? एक दूसरे को ब्लेसिंग देना, दुआएं देना। जो हम सोचते हैं ना मन में, वो ब्रह्मांड में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रह्मांड में जाता है, वो हमारे पर आकर गिरता है, घूम करके हमारे पर आकर गिरता है। मैं दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बुरी है, तो वो विचार भी ब्रह्मांड में गया, घूम करके वापिस आया, वो बुरी की बुरी रह जाएगी बेचारी, मैंने उसको बद्दुआ दे दिया। तो हम क्या सोचेंगे? पॉजिटिव सबके लिए सोचेंगे, अपने लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे। सब अच्छे हैं, अच्छे रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। अपने लिए भी दोनों हाथ सिर पर रखो, दोनों हाथ सिर पर रखो और मेरे साथ बोलेंगे, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम हेल्दी, I am healthy, I am wealthy, I am wealthy, I am happy, I am happy। तथास्तु हो गया। मेरे पर मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैं अपने लिए अच्छा सोचूंगी, ब्रह्मांड में जाएगा, वरदान के रूप में फलीभूत होगा। तो हम जीवन में सोचे तो कैसा सोचे? अच्छा सोचे, सही सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव मत सोचे। और ज्यादा ना सोचे, नहीं तो वेस्ट में चला जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। और नेगेटिव अति हो जाता है, अति हो जाता है तो व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन के बाद पागल बन जाते हैं। तो हमें पागल नहीं बनना है, मुझे पागल नहीं बनना है।
मुझे शांत रहना है। तो रोज एकांत में बैठ करके अपने आप को शांत कर दो। जैसे हरीश भाई ने बहुत सारी बातें सुनाई कि हम आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है, तो साइलेंस का अनुभव करो, प्रकृति का आनंद लो। यहाँ तो प्रकृति, हम्म, हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं, ग्रीन ग्रीन चारों तरफ है। सबके घर के आजू बाजू ग्रीनरी है। और साइलेंस भी है, कोई गाड़ियों का आवाज नहीं। हमारे इंडिया में तो देखो, हम्म, लेकिन यहाँ तो बहुत शांति है। तो प्रकृति का भी आनंद लो, एकांत में घूमो, एकांत में परमात्मा को याद करो, आसमान की ओर देखो कि ऊपर वाला भगवान ऊपर में बैठा है, मुझे देख रहा है, मेरी सारी बातें सुन रहा है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? भगवान सुन रहा है ना, देख रहा है ना भगवान, कि नहीं देख रहा है? देख रहा है। और मैं जो चाहूं अपने आप को बना सकती हूँ, अच्छा भी बना सकती हूँ और बुरा भी बना सकती हूँ। हमारे में ताकत है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार देवताओं की स्वर्ग में मीटिंग हुई और स्वर्ग में सभी देवताएं मिले जैसे हम लोग मिले हैं। तो एक देवता ने बोला कि मानव में बहुत ताकत है, इंसान में बहुत ताकत है। तो एक दूसरे ने प्रश्न पूछा क्या ताकत है? तो कहते हैं हमारा स्वर्ग भी वो ले सकता है, देवता बन सकता है मानव, और भगवान तक भी पहुंच सकता है, भगवान को भी खींच सकता है, भगवान से वरदान भी ले सकता है। मानव में बहुत ताकत है, तो क्या करें? तो एक देवता बोला कि मानव की शक्ति को हम खींच लेवे, इकट्ठी कर लेवे और पानी में, समुद्र में डुबो दे। तो दूसरा देवता कहता है नहीं नहीं, धरती के पेटाड़ में डाल दे। तो तीसरा कहता है नहीं नहीं, आसमान में छुपा दे। तो चौथा देवता कहता है कहाँ छुपाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर ही रहने दो, उनके अंदर उनकी शक्ति रहने दो। क्यों? क्योंकि मानव हमेशा एक कमजोरी के वश है। इंसान की एक ही कमजोरी है, वो कभी अंदर नहीं जाएगा, अंदर अपने आप को नहीं देखेगा, लेकिन बाहर की चकाचौंध को देखेगा और दुनिया को देखेगा। दुनिया के आकर्षण विकर्षण में घूमता रहेगा, यहाँ वहां उधर इधर मुंह डालता रहेगा। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, धरती के पेटाड़ में और समुद्र में भी जाएगा। आज साइंस की शक्ति ने कमाल कर दी है, चंद्रलोक तक भी लोग पहुंच गए ना। वहां खोज कर रहे हैं क्या है, वहां प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां तो हवा पानी है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। समुद्र में भी गया अंदर, बहुत खोज कर रहे हैं। एक बार हम बॉम्बे में अभी 6 मास पहले गए थे। तो बॉम्बे में इंडिया गेट है, इंडिया गेट में बोटिंग करके, सामने एक केव है, गुफा है। तो हम बोटिंग करके वहां जा रहे थे, तो बड़े बड़े पाइप समुद्र में लगे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि ये पाइप क्यों लगे हैं? तो कोई ने जवाब दिया कि समुद्र में खोज की है, पेट्रोल निकला है, समुद्र में से पेट्रोल निकला और वो पेट्रोल जा रहा है रिफाइनरी में और फिर आगे जाएगा। तो कहने का भाव है कि मनुष्य आज सब जगह पहुंच गया, बाहरी दुनिया को ढूंढ रहा है, बाहरी दुनिया में मन भटका रहा है, लेकिन अंदर जाएगा तो देवता बन जाएगा, अंदर जाएगा तो भगवान के समीप भी पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है? अंदर जाना है, अंदर आत्मा की गहराई में जाए,
आत्मचिंतन करे, प्रभु चिंतन करे, मेडिटेशन करे, परमात्मा को सच्चे दिल से याद करे। बाकी नेगेटिव सोचना ही बंद करें, एक दूसरे की टांग खींचना भी बंद करें। आज दुनिया में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक भगत था भगवान का, और आंखों से धुंधला दिखता था, थोड़ा थोड़ा लाइट जरा, और लकड़ी लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाता था। रोज उसका नियम, धीरे 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 करके पहुंचता था। तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसको छेड़ा कि देखो, तू तो धुंधले हो, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तू क्या भगवान का दर्शन करेगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर प्यार से जवाब दिया था कि भले मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं स्पष्ट भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देखता है ना। मैं मंदिर में जाऊंगा, भगवान की आंखें तो खुली है ना, वो मेरे को देखेगा। तो हमें दूसरों का चिंतन नहीं करना है, अपना चिंतन करे, स्व चिंतन करे। स्व चिंतन करने से स्वयं की उन्नति होती है, पर चिंतन करने से उन्नति हमारी नहीं होती है, प्रगति नहीं होती है। तो अपने अंदर जाने का हम पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, शांति से चले। टेंशन सारा किसको सौंप दे? भगवान को सौंप दे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता का शब्द याद रखें। एक मुझे ये बात पर कहानी याद आ गई, आपको सुना दूं। दो संत थे, तो एक बड़ा एक छोटा। तो उसका नियम था गांव में जाकर भिक्षा मांगने का, और भिक्षा मांगने जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, गांव में भिक्षा मांग रहे थे और जोरदार बारिश पड़ी, और उसकी जो झोपड़ी थी ना, उसकी छत उड़ गई। हाँ, तूफान, आंधी तूफान आया, बारिश हुई तो छत उड़ गई। घर आए ना, देखा तो छत उड़ गई, ऐसे चार दीवारें खड़ी है। तो छोटा वाला है ना, वो सोचने लगा, अरे भगवान, ये छत भी, ये छोटी सी झोपड़ी भी तेरे से सहन नहीं हुई, जो उड़ा दी। और हमने आपके लिए तो संन्यास किया है, आपके लिए तो घर बार छोड़ा है, आपका नाम जाप रहे हैं, लोगों को भी हम सिखा रहे हैं प्रभु का नाम लो, और रो रहा है। और जो बड़ा था वो शांत था और स्थिर था, और वो समझाता था कि जो कुछ भी हमारे सामने परिस्थिति आती है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा भी राज समाया हुआ है, हमारा अच्छा ही होगा, इसलिए शोक न कर। और वो तो बैठ गया है घर, वो झोपड़ी के चारों दीवार थी, ऊपर छत नहीं थी, बैठ गया और बैठे बैठे आसमान को देख रहा है, पर भगवान को कहता है, हे भगवान, वाह, कभी चांद तारे देखे ही नहीं थे, आज दिखा है तुम्हें। हाँ? धन्य है प्रभु, कितना सुंदर आसमान में नजारा है जो आज मुझे देखने का मौका मिला। पॉजिटिव सोचता रहा और वहां ही जुटका खाता रहा। फिर सुबह हुई, गांव में भिक्षा मांगने गए ना, लोगों को बात करते थे कि हमारी छत उड़ गई, तो लोगों ने उनको सहारा दे दिया, और मीटिंग हुई लोगों की, और लोगों ने कहा कि चिंता मत करो, हम सब मिल करके पक्का मकान बना देंगे आपका। तो वहां पक्का मकान बन गया। तो कहने का भाव ये है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, जो हो गया सो हो गया। बीती हुई बातों को हम भूल जावे, बीती हुई बातों को भी याद करेंगे ना तो भी हम रोते रहेंगे। हमारे सेंटर में एक माता आती है, और एक बार आकर के रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है, आज मेरे जेठानी आई थी ना, तो जब मैं नई नई बहू आई थी घर में, तो मेरी जेठानी ने मेरे साथ अच्छा कभी व्यवहार नहीं किया था, और उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था। मेरी जेठानी आई, मैंने अच्छा खाना भी खिलाया, अभी चली भी गई। तो मैंने कहा, चली गई तो रोती क्यों हो? तो कहते हैं उनकी पुरानी बातें याद। तो हम क्या करेंगे, बीती हुई बातों को भूल जाएंगे और वर्तमान पर चलेंगे, अपने मन को शांत करेंगे। अब मेडिटेशन करेंगे।
अपने अंदर जाएंगे, एकदम बाह्य जगत के विचारों को समेट के अपने आप को देखने का प्रयास करें। मैं कौन हूँ? मैं दो आंखों के बीच प्रकृति में विराजमान एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक लाइट, एक ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर निमित्त मात्र पार्ट प्ले करने आई हूँ। मेरा ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, विनाशी है। मैं इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा अपने परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल सर्वशक्तिवान के साथ मंगल मिलन करने जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से पार, नील गगन से पार, दूर दूर प्रकृति का छठा ब्रह्म तत्व है, जहाँ चारों तरफ लाल सुनहरी प्रकाश छाया हुआ है, असीम शांति है, चारों तरफ शांति शांति है। मैं आत्मा इस शांति धाम में परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा इस शांति धाम की निवासी, शांति के सागर शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। मेरी आत्मा का सर्व संबंध परमात्मा शिव के साथ है। मैं आत्मा निराकार, मेरा पिता परमात्मा निराकार। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मेरा पिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है। देखिए, निहारिए शिव निराकार ज्योति स्वरूप को मन बुद्धि के नेत्र से देखते रहिए, महसूस करिए। मैं आत्मा शिव के सानिध्य में हूँ। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा उनकी संतान शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा शिव पवित्रता के सागर है। मैं आत्मा भी उनकी संतान पवित्र आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप आत्मा, वो सुख का सागर है। मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूँ। शिव को देख रही हूँ। देखिए, अपने परम पिता परमात्मा शिव को देखिए। उनकी सारी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, पूरे विश्व में फैल रही है, सारे संसार की आत्माओं के ऊपर पड़ रही है, मेरी आत्मा के ऊपर भी पड़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा शिव के सानिध्य में परम आनंद का, खुशी का अनुभव कर रही हूँ। ऐसे प्रभु से मिलन मनाते मनाते फिर से इस देह की दुनिया में, इस देह में आ रही हूँ। मैं इस संसार में निमित्त हूँ, पाठधारी हूँ। इस संसार में रहते मुझे अपने मन वचन कर्म को श्रेष्ठ रखना है। मुझे सदा शिव परमात्मा को याद करके झोली भरनी है। मैं आत्मा सदा इस जीवन में हर कर्म करते करते कर्म योगी बन परमात्मा शिव को याद करती रहूंगी। ओम शांति। Oh, Shanti. Truly, when we practice creating positive thoughts, the impact on our lives is phenomenal. Even in science, now we are realizing
through research studies that even for a second, if we create negative thoughts, a tremendous amount of negative energy gets transmitted to the body, and then all these negative chemicals get secreted. And what happens eventually is that the body starts to fall apart from the top of your head to the tips of your toes. Is there anyone here who likes to get sick? Is there anyone here who wants to get old quickly? We all want to live long. Of course, not forever, but at least long enough and healthy. We all want to enjoy good relationships. We all want to experience a meaningful life. Now, everything starts with the most fundamental things, and that is the mind, and the tiniest element or tiniest unit of the mind is thought. So if we are careful about each thought that we create every moment throughout the day, our lives will become the most amazing lives ever. Om Shanti.